औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is Sir Mehrab Ali Samejo and we will continue our lecture number 1.3. In this lecture we will study about the types of the physical quantity regarding measurement. So dear students, first physical quantity. In our previous lecture we have done about the physical quantity as well as, but we need repetition. A quantity which can be measured and by which the various physical quantities physical happenings can be explained and expressed in the form of laws is called physical quantity. For example, electric current, temperature, area, force, mass, time. These all are the quantities which can be measured. So these are the some examples of the physical quantities. When we talk about the types of the physical quantity, dear students, now the next topic we will continue the types of physical quantity. Types of physical quantities. Types of physical quantities. Dear students, there are the number of the physical quantities in different forms, in different types, like scalar quantities, vector quantities, measurable quantities, countable quantities, uncountable quantities, abstract quantities. But when we talk about the physical quantity, dear students, now we will start the types of the physical quantity. When we talk about the types of the physical quantity,
there may be the number of the types of the physical quantities, but regarding measurement, the physical quantities are divided into three types. So regarding measurement, regarding measurements the physical quantities are divided into three types. The physical quantities regarding measurements are divided into three classes. Number one, fundamental or base quantities. Number two, derived quantities. Number three, supplementary quantities. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे तो बहुत से टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सॉलिड क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ऐसे बहुत से टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिगार्डिंग मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, दूसरी होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज और तीसरी आपके पास होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पहले हम बेस क्वांटिटी को या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर वन, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज which have their unique identification which have their unique identification and they do not depend upon the other. They do not depend upon the other. They do not depend upon the other quantities. Quantities are known as fundamental, are known as fundamental or base क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, हर सिस्टम में
उसकी बेस क्वांटिटीज चेंज होती है, पर जनरली हमारे पास जो लेंथ, मास और टाइम को यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ एंड टाइम, दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एमके सिस्टम। इस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की एग्जांपल लिए हैं वो एमके सिस्टम में लिए हैं, या आप एसआई सिस्टम में भी आप देखेंगे तो यही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सो दैट वाज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर देयर यूनिट आइडेंटिफिकेशन, क्या मतलब, यानी दे हैव देयर ओन आइडेंटिफिकेशन, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, किसी के चेंज होने से ये फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं होती हैं, बल्कि उनकी फिक्स्ड मेजरमेंट होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, और उसी से रिगार्डिंग दूसरी क्वांटिटीज को भी हम मेजर कर सकते हैं। यू मे से फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। सो दैट वाज द फंडामेंटल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड जा रहे हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। सेकंड, ड्राइव्ड quantities. When we talk about the derived quantity, the physical quantities which are derived from the base or the fundamental quantities are known as derived quantities. कैसे derive की जाती हैं? Basically या तो fundamental quantities को multiply करने से, या divide करने से, या multiply divide दोनों ही करने से जो नई quantities बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, derived quantity. So dear students, when we talk about the derived quantities, physical quantities which are derived, which are derived from fundamental quantities are known as derived quantities. Are known as derived quantities. For example, speed, area, volume, density. For example, speed, area, volume, density, and a lot of the quantities which are being driven with the help of the fundamental quantities. These quantities are known as derived quantities. अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अब कर लें कि ये स्पीड क्या है। बेसिकली स्पीड जो है आपके पास, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द लेंथ लेते हैं और टाइम, अब देखिए लेंथ क्या थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करने से नई क्वांटिटी जो स्पीड बनी है, ये आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। इसी तरह से अगर आप एरिया की बात करें, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इसका मतलब है ये तो लेंथ है और विड्थ भी बेसिकली एक टाइप लेंथ का है, तो लेंथ इनटू लेंथ अगर आप करें, देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपके पास, लेंथ फंडामेंटल है, दूसरी लेंथ वो भी फंडामेंटल। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो नई क्वांटिटी क्या बन गई,
एरिया बनी और एरिया क्या हो कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें इसको। अब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की तरफ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। थर्ड वन इज supplementary quantities। डियर स्टूडेंट्स, अब तक साइंस में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके हैं कि वेदर दे आर फंडामेंटल और ड्राइव्ड। इसमें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं। एक है आपकी प्लेन एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। सो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which do not belong, which do not belong to the base quantities, to the base quantities or derived quantities, or derived quantities, or derived quantities are known as supplementary, are known as supplementary quantities, are known as supplementary quantities. Supplementary quantities are supplementary quantities are geometrical quantities, are geometrical quantities of, or geometrical quantities of circle and sphere. There are two types of supplementary quantities in physics. Number one, plane angle, and number two, solid angle. Dear students, in the next lecture we will discuss about the plane angle and the solid angle as well. Plane angle is two-dimensional angle, while the solid angle is three-dimensional angle. Dear students, now we are having the practice numerical from chapter number 1, from the lecture number 3. You know that the topic was physical quantities and the types of the physical quantities. So first numerical you can see there. Which of the following physical quantity is fundamental? You are given the four options: viscosity, velocity, force, and the time. So dear students, you know that out of these four, which one is the fundamental quantity? Viscosity is a derived quantity,
velocity is also a derived quantity, force is also a derived quantity. That means option D is a correct answer. That one is time. And dear students, time is the only quantity which remains in all the systems as a constant. That is always a fundamental. D is a correct answer. Now let's look at the second question. In SI system, look at the question number 2. In SI, the number of the physical quantities are, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या क्या दिए हुए हैं, 7, 2, 3 एंड इनफाइनाइट. आमतौर पे जब SI का नाम आता है हम यकदम से बोल देते हैं सर देयर आर 7 क्वांटिटीज. नो, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो आमतौर पे हम ऑप्शन ए को टिक करते हैं, ये रॉन्ग है. अगर यहां पे ये कहा जाता कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फिर बिल्कुल सही था. और अगर यहां पे कहा जाता हाउ मेनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन ऐसा सिस्टम तो 2 थी, बिल्कुल सही था. लेकिन यहां पे क्योंकि की पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं, दो क्वांटिटीज आपके पास जो है वो सप्लीमेंट्री है, 7 आपके पास फंडामेंटल है. लेकिन जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट क्वांटिटीज. तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. दैट मीन्स ऑप्शन डी इनफाइनाइट इज अ करेक्ट, इनफाइनाइट इज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. लुक एट द अगेन, रीड इट आउट. तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल्स हल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं. पहले हमेशा क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद हल करें. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, check at the boards. Question number 3, which of the following is a supplementary physical quantity? तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास 4 ऑप्शन जो दिए गए, स्टेरेडियन, रेडियन, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देम. यहां पर भी अक्सर बेशतर इस क्वेश्चन को हल करते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं. यहां लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कहते हैं भाई स्टेरेडियन भी है, रेडियन भी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बोथ ए एंड बी. लेकिन ऐसा नहीं है. सवाल को पूरा समझने की कोशिश किया करें. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. और स्टेरेडियन और रेडियन क्या है, यूनिट्स हैं, दे आर नॉट द क्वांटिटीज. फिजिकल अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का वर्ड आप यूज करें तो कौन सी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. अगर क्वांटिटीज की बात करें सप्लीमेंट्री तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो फर्स्ट ऑप्शन ए है, स्टेरेडियन भी नहीं है क्योंकि वो तो यूनिट है सप्लीमेंट्री, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं है, यूनिट है. रेडियन भी नहीं है, तो ऑप्शन डी, सी भी नहीं हो सकता. ऑप्शन डी में क्या है, नन ऑफ देम. दैट मीन्स इसका भी आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ देम. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब जा रहे हैं तो आप चेक करें, यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 को. द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स with the velocities approaching the velocity of the light is called dash mechanics. देखिए, when the bodies are having the velocity, that means they are in a motion. Mechanics तो है. ऐसी बॉडीज जिनकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि जिसको हम कंपेयर कर सकें किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ. तो ये ब्रांच जो फिजिक्स की आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस की थी, और इस ब्रांच का नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. एक लो स्पीड पे जो बॉडीज मूव करती हैं वो न्यूटनियन मैकेनिक्स को ओबे करती हैं, और जब स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि जिसको हम कंपेयर कर सकें किससे, स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है. तो इसका मतलब है आपके पास इस आपके क्वेश्चन में जो आंसर है आपके पास वो क्या हो जाएगा, बी. ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्या है, बी. और क्या हो जाएगा,
रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन 5। तो आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 5 को। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे आप देख रहे हैं मैंने लिखा 2002। ये क्वेश्चन आपके रियल टेस्ट में आ चुका है, जो आईबीए टेस्ट लेता था लम्स वगैरह के 2002 के रियल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें देखें ऑप्शन क्या दिए हैं, लेंथ, टाइम, मास एंड फोर्स। आपको पता है ऐसा सिस्टम है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास क्या है, फंडामेंटल है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। सवाल को समझने की कोशिश करें, सवाल में क्या क्या, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। और वो कौन सी है, फोर्स इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन दिस सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी डन। So that's the end of your lecture 3. We have done the physical quantity, its types and some practice problem. Thank you very much.